हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। इस वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ जनवरी का पीआईबी एनालिसिस एंड समरी देखेंगे। देन एंड इट विल हेल्पफुल इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2021 एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। हमारा जो पहला पीआईबी है दैट इज यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इनॉग्रेट द इशू ऑफ नेशनल पुलिस के9 जर्नल। ओके, सो नेशनल पुलिस के9 एक्चुअली में है क्या, जो एक्सेल अब एक्चुअली में है क्या, देन यहाँ पर जो के9 जो दिया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे कि के9 है क्या। ओके, सो पुलिस के9 सेल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पुलिस के9 सेल कब स्टैब्लिश हुआ? वो स्टैब्लिश इन द नवंबर 2019 अंडर द पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीजन ऑफ डिवीजन। एंड किसके अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ Home Affairs. And the publication of Police K9 Journal is another step in creating an ecosystem in the country and train and learn the augmenting resources or a vital resources. Okay, so K9. K9 क्या है? K9 is a police dog unit or referred to as a K9. Okay, and police dog का बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि a police dog is a dog that is especially trained to assist police or other law enforcement personnel, and their duties include such as the searching of drugs and explosives, locating missing people, finding crime scene evidences, and attacking people targeted by the पुलिस। एंड जो पुलिस के नाइन जो सेल है इसमें कुछ डॉग्स की ब्रीड्स होती है जिन्हें यूज करते हैं इंडियन पुलिस हमारी। तो कौन कौन सी है? जर्मन शेफर्ड एंड बेल्जियन मेलिनोइस एंड ब्लड हाउंड and the Dutch Shepherd. Okay, and recently Belgian Malinois has become the dog of choice for police and military work due to their intensive drive and focus. ये था नेशनल पुलिस के9 के बारे में, देन के9 सेल के बारे में। ये थे हमारे पहले पीआईबी एंड दे आल्सो यूज टू डिटेक्ट द ड्रग्स एंड कॉम्बेटिंग द टेररिस्ट। ओके, देन हमारी जो सेकंड पीआईबी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। हम इसका ईयर एंड रिव्यू देखेंगे 2020 में कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ मेजर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम और इनिशिएटिव चलाए। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि सम ऑफ द मेजर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम by the Ministry of Electronics. पहला e-governance program that is the आरोग्य सेतु, which is a contact tracing app. Then the second one is the DigiLocker, and it is a digital platform for issue or verify of documents issued by the government or a private department. And the third initiative that is a National Center for Geoinformatics, and it is a Geographical Information System GIS platform. Then Umang, which is a mobile app, and it is a unified platform aggregating major government services. Okay, and the app is integrated with Aadhaar, DigiLocker, payment gateway, etc. Then the next initiative that is India's first global summit on artificial intelligence, RAISE 2020, and which was inaugurated by the Prime Minister of India. And this on this summit, there are approx 147 countries that registered under this initiative. Okay, and featured 320 plus keynote speaker from the 21 countries. Okay, and this is the startup. Okay, and जो अभी जो India's first global summit on artificial intelligence ये अभी startup है। then हम इसके बारे में और भी चीज देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस इतना देख रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट ग्लोबल समिट है जिसको रेस 2020 के नाम से जाना जाता है, और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ था? बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। और इसमें 147 कंट्रीज ने रजिस्टर अभी तक किया है। ओके, देन आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज विच वाज लॉन्च्ड फॉर 9 कैटेगरीज। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या हैं? बिजनेस, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड हेल्थ। ओके, then the next initiative that we have is the digital skilling initiative, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड NASSCOM जॉइंट वेंचर था। इन्होंने दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को चलाया एंड इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, और इसका एम क्या है? द इनिशिएटिव एम टू कवर 7 लाख IT प्रोफेशनल इन द नेक्स्ट 5 years. Okay, then the next e-governance program by the Ministry of Electronics, that is the electronic transaction aggregations analysis layer, also known as the ETAL dashboard, and for aggregate ये जो initiative है किस लिए? For aggregate view of online transactions through e-governance projects across center, state and local level. Then the last e-governance program
in the year of 2020 by the Ministry of Electronics, that is a Jeevan Praman, and it is a biometric enabled digital service for pensioners to submit their digital life certificate DLC. Okay, so ये था 2020 का वर्क बाय द और ई गवर्नेंस प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ये जितने भी यहाँ पर जितने भी ई गवर्नेंस प्रोग्राम दिए इनका एक प्रॉपर वेबसाइट है। अगर आपको और भी चीज़ें जैसे रीड करनी है किसी चीज़ के बारे में तो देन आप उस पर उस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली थ्रू आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन next PIV that we have is a PM paid tributes to Sri Mannathu Padmanabhan on his Jayanti. Okay, so हम इस पे मन्नथु पद्मनाभन पिल्ले जी के बारे में देखेंगे कि वो कौन थे, देन उनके पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिक लाइफ के बारे में रीड करेंगे। सो he was an Indian social reformer and a freedom fighter from south and western state of Kerala, and he was the founder of Nair Service Society (NSS), and which claims to represent the Nair community. And note that he became a member of INC (Indian National Congress) in 1946 and took part in the agitation against the Sir C.P. Ramaswamy Iyer administration in Travancore. Okay, and वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? He is known for because he took part in the Vakom and the Gurugayur, which is a temple entry satyagraha. Okay, so आप इसे नोट कर लीजिए कि that Vakom and the Gurugayur, and it is a temple entry satyagraha जिन्होंने उन्होंने पार्ट लिया, and then also took part in the anti-untouchability agitations. So ये this is about the Mannathu Padmanabhan Pillai. Okay, then our next PIV that we have is the Prime Minister of India to dedicate a Kochi Mangaluru natural gas pipeline to the nation. Okay, so इस पे हम पहले कोची मैंगलोरू पाइपलाइन के बारे में देखेंगे कि पाइपलाइन एक्चुअली में है कहाँ से एंड कैसे स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। देन उसके बाद दिस इनिशिएटिव इज टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड। ओके, जो इनिशिएटिव है किस टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ इंडिया वन नेशन एंड वन गैस ग्रिड। तो हम यहाँ पर जो इनिशिएटिव दी हुई है वन नेशन वन गैस ग्रिड वो एक्चुअली में है क्या, उसकी नेसेसिटी क्यों हुई, जरूरत क्यों हुई, उसके बारे में देखेंगे। देन नेचुरल गैस के बारे में हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाइपलाइन के बारे में रीड कर लेते हैं। इट इज अ 450 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन व्हिच has been built by the GAIL India Private Limited. Okay, and it has a transportation capacity of 12 million metric standard cubic meter per day and will carry a natural gas from LNG. LNG means liquefied natural gas regasification terminal at Kochi, Kerala to Mangalore. Okay, so ये start कहाँ से होगी पाइपलाइन? Start from the Kerala to and ends to Mangalore. एंड जो पाइपलाइन कहाँ कहाँ से पास होने वाली है? while passing through the Ernakulam, Thrissur, Palakkad, Mamallapuram, Kannur, Kasaragod district. Okay, and the total cost of this project was about rupees 3,000 crore, and its construction created over a 12 lakh employment. Okay, then जो पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, the laying of the pipeline was an engineering challenge. That's why this was done through a special technique called horizontal directional drilling method. So जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है किस मेथड से बिछाई जा रही है? by the special technique called horizontal directional drilling method. So ये क्या होती है पहले हम इसे देख लेते हैं कि horizontal directional drilling method क्या होती है। ये है डायग्राम horizontal directional drilling method का। ओके, सो जो HDD है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल बोरिंग, एंड इट इज अ मिनिमल इम्पैक्ट trenchless method of installing a underground utilities such as pipe cables in relative shallow arc, okay, or a radius along a prescribed underground path using a surface launched drilling rig. And note that directional boring or a HDD means horizontal direction drilling offer a significant environmental advantages, okay, over a traditional cut or a cover a pipeline utility installation. So what is the uses of HDD? Because okay, हम यहाँ पर इसके uses भी देखेंगे because why the this method used for the construction of Kochi Mangaluru natural gas pipeline. So इसके uses का क्या है? For installing infrastructure such as telecom power cable, water lines, sewer lines, gas pipelines, oil lines, and product pipelines, environmental remediation casings. Okay, and it is used instead of other techniques. Okay. To provide a less traffic disruption, lower cost, deeper or longer installations, no access speed, or a shorter completion time,
and directional capabilities and also environmental safety. That's why इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है. ओके, देन नोट दैट ये जो पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, ओके, विल सप्लाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल फ्यूल, ओके, इन द फॉर्म ऑफ PNG, piped natural gas, to households for household, and for the to the and CNG, compressed natural gas, to the transportation sector. And also note that it will also supply natural gas to the commercial and industrial unit across the district along with the pipeline. Okay, अब हम देखते हैं what is the objective of one nation one grid program. Okay, the objective is, and because the rural household, the main objective is the to provide a rural household cooking gas and electricity connection by the 2022. Okay, and what is the national grid? Okay, national grid यहाँ पर क्या है? National grid is a high voltage electricity network in India that connects a power station and all important substation to ensure a generation of electricity at every point. Okay, and the national grid is owned या फिर किसके द्वारा मेंटेन या ऑपरेट किया जाएगा बाय द स्टेट owned पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सो ये था नेशनल ग्रिड के बारे में. देन वन नेशन वन ग्रिड का क्या ऑब्जेक्टिव है, ओके, हमने इसको देखा. देन नेचुरल गैस के बारे में हम देख लेते हैं कि नेचुरल गैस है क्या. नेचुरल गैस इज कॉल्ड द क्लीनेस्ट फ्यूल एंड किसका मिक्सचर होता है? जो मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल दीस गैसेस इंक्लूडिंग मीथेन, जैसे मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो which are naturally found in the atmosphere. Okay, and natural gas reserve are deep inside the earth near other solid and liquid hydrocarbons bed. Okay, और वहां से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइक कोल, क्रूड ऑयल, जो डीप इनसाइड द नेचुरल गैस रिजर्व्स या कोल एंड क्रूड ऑयल में जो एक्सट्रैक्ट होता है वहां से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, hope you get the point. Then what is the use of natural gas? The use of natural gas are in a feedstock or in manufacture of fertilizer और plastic manufacturing के लिए use किया जाता है, and also used as a commercial important chemicals as well as fuel for the generation of electricity generate करने के लिए natural gas को use किया जाता है. Then it also used for cooking fuel in domestic household and transportation fuel or for vehicles. ओके, सो ये था हमारा नेचुरल गैस की कुछ यूजेस, किसके कहाँ पे यूज होता है. अब देखते हैं हम कि जो ये वन नेशन वन गैस ग्रिड की नेसेसिटी, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड दिस ग्रिड. ओके, बिकॉज फर्स्ट नोट दैट कि इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन गैस आफ्टर द यूएस एंड चाइना. ओके, एंड ये जो ग्रिड है, दिस ग्रिड विल हेल्पफुल मीटिंग द एमिशन रिडक्शन टारगेट, ओके, अंडर पेरिस एग्रीमेंट. ओके, सो ये ग्रिड किस तरीके से हमें जो ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसको एमिशन का, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन उसका रिडक्शन टारगेट को अचीव करने में हेल्पफुल है. दैट्स व्हाई वी नीड दिस ग्रिड. ओके, एंड note that natural gas can be used as a transition fuel before completely switching to solar or a clean energy. And India ने कुछ aim target जो set करके रखे हैं, that is India aim to increase the share of natural gas to 15% by the 2030. So this is about the natural gas. And इस initiative के अंदर one nation one grid के अंदर कुछ pipeline से जो introduce की गई हैं, that is सबसे पहले जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट. एंड जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बाय द गेल. एंड जो फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विच इंक्लूड फुलपुर टू धोबी इन गया. एंड ये किसे किसे कनेक्ट करेगा, टू वाराणसी, पटना, गोरखपुर एंड बरौनी. ओके, और जो इसका 40% एड है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा फॉर ईस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट. एंड जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो पहला प्रोजेक्ट है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल बिल्ड अ न्यू फर्टिलाइजर यूनिट एट दुर्गापुर एंड रिवाइव 3 फर्टिलाइजर प्लांट. ओके, देन द सेकंड वन प्रोजेक्ट इज अ गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट. एंड ये प्रोजेक्ट किसे किसे जोड़ेगा, किसे किसे लिंक करेगा, लिंक द बरौनी टू गुवाहाटी इन आसाम एंड वुड बी लेटर कनेक्टेड टू नेचुरल गैस ग्रिड. ओके, एंड ये जो प्रोजेक्ट है किस रिक्वायरमेंट, किस स्टेट की कुछ रिक्वायरमेंट्स उसे फुलफिल करेगा. दिस प्रोजेक्ट वुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टेट, इंटायर ईस्टर्न स्टेट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट.
सो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न कौन कौन से, दैट इज यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। जो तीसरा प्रोजेक्ट है इस इनिशिएटिव के अंदर, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड प्रोग्राम। एंड ये जो प्रोग्राम है क्या है, ये जॉइंट वेंचर प्रोग्राम है बाय द गेल, ओएनजीसी, एनआरएल, आईओसीएल एंड ओआईएल। कलेक्टिवली ये सारे लोग मिलके इस प्रोग्राम के अंदर वर्क कर रहे हैं एंड दीज कलेक्टिवली नोन एज इंद्रधनुष gas grid limited. Okay, and they are developing a trench pipeline connectivity in every northeastern state. Okay, and इसका major objective क्या है? Major objective of this pipeline is to transport a domestic natural gas to the northeast state, connecting it to national gas grid program. Okay, and the fourth one initiative under the One Nation One Gas Grid program is the Kochi Kottanar Bangalore phase 2 pipeline project. So हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, दैट हैज ऑलरेडी कमीशन, सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ, दैट हैज ऑलरेडी कमीशन। एंड जो फेज 2 है उसका अंडरगो एंड प्रोसेस में है एंड गेल इज द रिस्पांसिबल अथॉरिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Then the last one project under the One Nation One Gas Grid is Ennore Tiruvallur Bangalore Nagapattinam Madurai Tuticorin natural gas pipeline। एंड ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की जा रही है, कंस्ट्रक्टेड बाय द आईओसीएल। एंड ये कनेक्ट किसे किसे करेगा, कनेक्टिंग न्यू एन्नोर एलएनजी टर्मिनल विद तमिलनाडु कंजप्शन सिटीज। ओके, एंड इसकी एक ब्रांच है, वन ऑफ द ब्रांच विल आल्सो बी कनेक्टेड टू बैंगलोर। सो ये बैंगलोर तमिलनाडु दोनों को कनेक्ट करेगी। ओके, उसके कुछ सिटीज को। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अंडर द वन नेशन वन ग्रिड। और इसमें हमने उसकी नेसेसिटी देखा कि उसकी आवश्यकता क्यों नहीं, देन उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में हमने रीड किया। देन हमने जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट दिया हुआ था, ओके, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड के बारे में देखा। देन देखा हमने कि कोच्चि मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन जो 5 जनवरी को जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक है, और उस पाइपलाइन के बारे में देखा। ओके, then the next PIV that we have is TREFED. About the TREFED means a Tribal Cooperative Marketing Federation of India. Okay, and this initiative works under the किसके अंडर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एंड इनिशिएट कर रही है, इनिशिएट मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। ओके, सो कुछ प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेफेड ने एक इनिशिएटिव चलाया है, किस कोलैबोरेशन विद, किसके साथ कोलैब करके, विद द इंडिया पोस्ट। ओके, एंड DONER मींस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, सो जो एक कोलैबोरेशन है ये अलायंस विद द एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी। ओके, सो ये जो कोलैबोरेशन है किसके साथ अलायंस कर रहा है, अलायंस विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। एंड इट विल हेल्पफुल टू प्रमोट economic, strategic, cultural relation with the vast Asia Pacific region at a different levels. And the objective is to increase the sale of northeastern product into 4 folds. Okay, and जो initiative है, this initiative will help in enhancing the income generation of tribal suppliers and contribute effectively to Atmanirbhar Bharat Abhiyan। ओके, एंड जो ट्रेफेड का जो इनिशिएटिव है, इस पे एक चीज और है कि दैट जो प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट कर रहे हैं उनको ये जीआई टैग भी देंगे। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जहां से वो चीज ऑरिजिनेट हुई है। ओके, सो बाय जीआई टैगिंग द प्रोडक्ट, द ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी इंश्योर कि यह कहां से ओरिजिन हुआ है। ओके, एंड ये इस तरीके से क्या होगा, एंड this will help the north state in generating awareness about region in rich tradition and the quality across the globe। ओके, सो हम इस पे पहले जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। जीआई टैग के बाद हम देखेंगे ट्रेफेड के बारे में। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उसका फुल फॉर्म जो होता है, एंड किसके द्वारा रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज यूज्ड टू डिनोट द जियोग्राफिकल टेरिटरी। ये जियोग्राफिकल टेरिटरी को डिनोट करता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, या तो नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, या तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया, ये कहाँ से है। ओके, तो दैट्स व्हाई GI टैग दिया जाता है उस प्रोडक्ट को। ओके, एंड ऑल्सो अश्योर द क्वालिटीज।
Okay, also assure the qualities and attribute that are unique to the specific geographical region. Okay, and note that जो GI टैग है ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है? बाय रिकॉग्नाइजेशन ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. Okay, GI tag defined under Article 22 of the WTO TRIPS agreement. Okay, जो Article 22 है under WTO TRIPS agreement. TRIPS agreement means trade related aspect of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आर्टिकल 22 में जीआई टैग को डिफाइन किया गया. क्या डिफाइन किया गया है? एग्रीमेंट एज इट इज एन इंडिकेशन व्हिच आइडेंटिफाई एज अ गुड एज अ ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर or a region or a locality in that territory where a given quality, reputation, characteristic of good is essentially attribute to its geographic region. So ये GI टैग की definition है जो आर्टिकल 22 के अंदर डिफाइन की गई है. So note that कि दार्जिलिंग टी जो इंडिया की द फर्स्ट GI टैग प्रोडक्ट इन इंडिया, ठीक है, जो दार्जिलिंग टी है वो सबसे पहले GI टैग प्रोडक्ट इंडिया की है जो 2004-5 में दिया गया था. ओके, देन हम देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कि जीआई टैग किसको मिला. ओके, और ये किसके द्वारा रेगुलेट होता है. ओके, तो जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है आर कवर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड किसके अंदर कवर किया गया? अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. ओके, इंटरनेशनल लेवल में जो जीआई टैग होता है इज गवर्न बाय द WTO एग्रीमेंट, ट्रिप्स एग्रीमेंट. और हमारे इंडिया पे इन इंडिया geographical indication registration administered by the Geographical Indication of Goods Registration Protection Act 1999 and which came into effect in September 2003. Okay, what is the benefit of GI tag? GI tag के benefits क्या है? Legal protection to the product, prevents unauthorized use of tag product. It helps the consumer to get a quality product of desired traits and assured authenticity and promotes the economic prosperity of producers of GI tag by enhancing their demands. Okay, so ये था GI tag के बारे में. यहाँ पर से एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पर से आप GI tag रीड कर सकते हैं कि हर स्टेट का GI tag किसको किसको GI tag मिला है और origin मिला है. Okay, then the ट्रिफेड क्या होता है? Okay, ट्रिफेड means a tribal cooperative marketing federation of India and it is a national level cooperative body under the Ministry of Tribal and Government of India. और ये किसको द्वारा स्टैब्लिश किया गया? तो स्टैब्लिश अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर. शुरुआत में इसको 1984 के अंदर रखा गया था लेकिन लेटर इसको 1984 में किसके अंडर रखा गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर. लेकिन लेटर इसको चेंज कर दिया गया एंड उसको अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ओके, इन ऑर्डर टू क्यों रखा गया ट्राइबल अफेयर्स को? इन ऑर्डर टू promote or empower the tribal community and it started the procurement of tribal art and craft item firstly in 1999 through its retail outlet called Tribals India. Okay, and note that Tribal Cooperative Marketing Federation of India was formed with the aim or objective of institutionalizing the trade of minor forest product and providing our tribals a fair price of surplus agriculture product produced by them. और ये it was established in the 1987 and became operational in the 1988. Okay, and ये था ट्रिफेड के बारे में. ओके, यहाँ पर और अगर आप चीज और कोई चीज को आपको रीड करना है, ओके, सो आप इसकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जा सकते हैं ट्रिफेड के बारे में. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द डेली इन्फो ऑफ PIB एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स. ओके, थैंक यू.